and it happens quite often. वो बिल्कुल ill trained वहाँ पे बैठे हैं, कोई अपना दारू पी के सो गया, कोई जो ड्यूटी पे है he is also playing card, something like that, you know. Nobody is interested. जबकि इतने नक्सलाइट इन्फेक्टेड एरिया में अगर आप बैठोगे, मुझे लगा जैसे पॉलिटिकल लोग just push that responsibility. we were there in Jammu and Kashmir. I was in Baramulla for 3 years, and I was in Rashtriya Rifle, where you know every day we fight with militants. वहाँ पे वही होता था कि रात को बल्कि we used to sleep in the afternoon so that we are awake in the night. Because रात को वहाँ पे फिदाइन अटैक, you know, some militant will वहाँ पे बांध के आ जाएगा, ब्लास्ट कर देगा अपने को अंदर पोस्ट में आके, you know, that fear was always there. और वो रात को ही वहाँ पे टक 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 शुरू हो जाता था मिलिटेंट्स का, और ये वो हम रात को ही बाहर निकलते थे. तो अदरवाइज इफ यू तो ट्रेनिंग जो मिला है उसको फॉलो जरूर करना, अदरवाइज इट्स वेरी. No, Colonel, I would like to share on that. I have met two people. One is Colonel Gambhir from Tamil Nadu, and one is Captain Gokhale from Pune. They were on the heights, Rajouri, and they were sitting there. For one man was there continuously for 3 months. Another one was for 6 months. Came down for solidarity, you know, ekle padoi, talking Marathi. You are talking about Solitude. They came for the treatment of that, but they have never budged from there. That what should be. क्या होना चाहिए? हाँ, रुद्र, now you tell me about Three Idiots. You were talking about. Sir, according to me, that I like the film very much, and the people near me who do not have that much film knowledge, and they also like the film. It's normal people, but even the critics, like Indian critics, they like the film. But one critic from London, he didn't like the film. He criticized the film. So as a film student, I was in confusion. So is this film really good as per a film student point of view, or is it bad? So that's I wanted to discuss. Yes. It's a very valid question. Maybe no. What was his critic London? हाँ, उन्होंने क्या लिखा? ब्रीफ में बता सकते हो क्या लिखा था कि ये जो फिल्म है वो टाइम पास फिल्म है, मतलब रियल सेंस में ये फिल्म Feel good. हाँ, मतलब एक्सपीरियंस, मतलब टाइम पास फिल्म है, लेकिन सिनेमैटिक नहीं है उसमें. नहीं, रियल लाइफ से कुछ अटैचमेंट. So he's from London. His उनके culture में वो नहीं होता है. culture, उनका environment is totally different. It got connected with Indians because everybody has gone through that same. Everybody is a rancho. Everybody is a rancho. Everybody wants to pursue his passion. अगर एक लेडी है वो घर में रोटी बना रही है, लेकिन उसका ड्रीम रहा है कि वो सिंगर रहे तभी. अभी क्या होता है कि अगर if she sees this movie, उसको लगता है कि मैं भी rancho, that she relates. तो इसी तरह वो बच्चा चाहे आर्मी ऑफिसर, मैं देख रहा था, मेरे को लग रहा था मैं ही rancho, because that's why I'm coming for this in workshop, because I want to pursue my passion. but that's a different. So everybody got connected. So it is a good movie. There is no doubt about it. Whatever is the लेकिन वो रहता है जैसे वो एकदम सुपरमैन ही बना है. He can hold. बस वही है. ओवर बोल गया. That was that delivery वाला scene and all. It was it's like I think that answers the first question. Real life experience and cinematic. सिनेमा में तो थोड़ा उसको हीरो को सुपर हीरो थोड़ा तो बढ़ाना ही. Especially with Amir Khan, तो फिर वो करना भी पड़ेगा. तो बोलेगा कि वो see, that's fine. See, we have why we are serious about this film is इसके पहले भी हमारे काफी डिबेट्स हुए कुछ फिल्मों के बारे में कि जो क्रिटिक्स ने भी अच्छी कही है, जो लोगों ने भी क्या कहते हैं आम ऑडियंस है, दैट ऑडियंस आल्सो बॉक्स ऑफिस पर देख रही थी, मगर असल में वो फिल्मों का कंटेंट, फिल्मों का also very poor. We are not going to discuss which films are there, क्योंकि अभी उतना समय नहीं है, और ये जो थ्री इडियट है तो पर्सनली मैंने अभी तक देखी नहीं है. हमारा जो विजडम ट्री ग्रुप है याहू का, FTIans का, तो वो मेल्स में कभी कभी पढ़ता हूँ, तो उसमें there are two schools which supports three idiots, and one big school is there which criticizes about the statements.
कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या होना चाहिए था. सेम थिंग happens about the film Wednesday. कि उसमें द मेजर ईमेल्स जब आते हैं तो वो कहते हैं कि क्या फिल्म बनाई है ना. तो अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म पूरी मैंने देखी नहीं है. सुनील सर, आपने दोनों फिल्म देखी है, तो वी विल लाइक टू नो योर ओपिनियन. कम समय में बताता हूँ. दोनों फिल्में मैंने देखी और दोनों मुझे अच्छी नहीं लगी. Which two? Wednesday and Three Idiots. मैं जानता हूँ कि दोनों काफी पॉपुलर फिल्में रही हैं. पॉपुलर फिल्में रही हैं और मेनस्ट्रीम में जैसे अभी किसी ने कहा कि टाइम पास या एंटरटेनमेंट के लिए काफी अच्छी रही. दोनों फिल्मों की खास करके पहले मैं थ्री इडियट्स की बात करूंगा. आपने सवाल पूछा था. आप तय कर सकते हैं कि आपको नॉवेल से कंपेयर करनी है या नहीं करनी. मैं करने से शुरू, बिकॉज़ यू हैव borrowed the material from there. आपको नहीं करनी है तो भी मैं इसके बारे में कुछ कहूंगा. नॉवेल की जो कंटेंट है उसके साथ आप क्या करते हैं एज अ फिल्म मेकर, इट्स एक्चुअली योर डोमेन. आपकी लिबर्टी होती है. मैं जब दोनों कंपेयर करता हूं तो मुझे लगता है कि नॉवेल में कुछ सब्सटेंस था जो फिल्म में से मिसिंग है, मूवी में से मिसिंग है. सबसे पहली बात मुझे थ्री इडियट्स के बारे में ये लगती है कि यह फिल्म भारतीय सिनेमा को कहीं ले नहीं जा रही है आगे. सब की सब बातें, हीरो का सुपर हीरो होना, विलन का सुपर विलन होना, फिर वही हंसी मजाक वाली बातें. So this film doesn't really take Indian cinema any step forward. I know it is highly appreciated by mass audiences because of its fast pace and humorous treatment and all. इसमें क्या है कि जैसे अभी कहा कि हमारा हीरो यानी उसको सब करने आना चाहिए. वो रॉकेट भी बनाता है, वो बिजली भी बनाता है, वो डिलीवरी भी करवाता है, सब करवाता है. दिस इज नॉट बिलीवेबल. आई कैन नॉट कनेक्ट विद सच अ कैरेक्टर. That one portion even I felt that. एक दूसरी बात ये रही कि जो मैं कह रहा था कि थ्री अपनी नॉवेल में 5-on-1 में IITians की जो एक लाइफ दिखाई गई है उसके अंदर जाना फिल्म के लिए बहुत जरूरी है, जो कि इसमें टाला गया है. इसमें 3 और 3 इडियट्स भी नहीं है. ऐसा मैं देखिए तो आमिर खान का रोल जो है, जो एक, क्योंकि आपने जैसे कहा कि स्पेशली विद आमिर खान यू हैव टू डू विद दिस सच थिंग्स, तो वो सिर्फ बढ़ा दिया गया है. यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है. IITians की जिंदगी क्या होती है या फिर कैसे असल में अच्छा जो माहौल बनाया है नॉवेल में, व्हिच इज मिसिंग इन दिस फिल्म. अब बात आती है कि जो एडिशंस किए हैं डायरेक्टर ने, जैसे कि एक बहुत अच्छा मैं अप्रिशिएट जिसको कहता हूँ, दैट इज वांगडू. राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हैज बीन प्लांटेड एंड देन इन द एंड इट रिवील्स टू बी यही तो वांगडू है. Yes. बट देन इसमें क्या देखिए कि आप शुरू में दिखाते हैं कि जो चतुर है वो इन तीनों को बुला लेता है क्योंकि 5 सितंबर को हम 10 साल पहले मिले थे और हमने तय किया था कि कौन कहाँ पर है देखेंगे. नाउ यू गो बैक टू द स्टोरी. 5 साल अब दिखाते हैं कि जब ये बच्चे सीख रहे हैं, मतलब अभी कॉलेज में है, तब वो प्रिंसिपल की बेटी जो है वो शी इज प्रैक्टिसिंग डॉक्टर. शी इज ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग डॉक्टर. वो बाद में उसको पटा देता है. ठीक है. सो वो जिससे शादी करना चाहती थी वो उसको ऐसा दिलाते कि भाई वो पैसे देख रहा है, हर चीज की कीमत करता है. नाउ यू आर 10 years आफ्टर, वो लड़की फिर उसे से शादी करेंगे. उसका इतना दिमाग नहीं है, वो शी इज अ डॉक्टर. फिर वो उसी के लिए रुकी है कि आपका क्लाइमैक्स बहुत इंटरेस्टिंग बने. इसके लिए आप स्टोरी में इतना, मतलब हाउ मच कैन यू टेक द ऑडियंस फॉर ग्रांटेड कि 10 साल बाद भी वो आपकी हीरोइन जो आपने पहले दिखाई वो उसी आदमी से शादी करने जा रही है. नाउ व्हाट हैपेंस इज, क्योंकि इन फिल्मों में जो एंटरटेनमेंट की फैक्टर्स आपने बताया वो इतने मसाला भर दिया गया है कि इस बात पर पूरा कवर कर दिया, मतलब नजरअंदाज हो जाती है ये बात. happy endings, they want the happy ending. But लॉजिक भी होना चाहिए. when will a cinema come out of this requirement कि भाई हमको बस कुछ सर वो सिनेमैटिक लिबर्टी बोलते हैं वहीं पर वो क्यों गया. मतलब इसका लिबर्टी नहीं है. जैसे बाघ को 250 साल का दिखा दिया, मतलब इट इज नॉट दैट लिबर्टी कैन नॉट बी. वो सीरियल में कौन सी थी, सास भी कभी बहू की और समझी, वही सीरियल है ना. 7th generation. हाँ, उसमें बाघ जो दादी या जो भी दिखाया कैरेक्टर, उसको इतना दिखाया कि देयर आर 2-3 जनरेशन शोन. 7 जनरेशन स्टिल अराउंड. और एक 3 इडियट्स में है जो मेडिकली ये दिखाया है कि वो वहाँ से डिटेक्ट करती है डिलीवरी कैसे करना है. Actually,
तो ये सोशल YouTube में ना तो डिलीवरी तो पूरा बताते हैं वो लोग YouTube का click कर देना था। हाँ, वो टेक्निकली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से वो ठीक नहीं, क्योंकि इंडियन ऐसे कोई कर पीपल्स आर देगा। नॉट दैट मच मैच्योर्ड। अगर वो वैक्यूम क्लीनर या ऐसी चीजें पॉसिबल है वो सब Why उसका this system That is- इतना ज़्यादा होता है a representation of a woman. Indian because if you go in village men are not that much careful or like that. कोई एक्सपेरिमेंट के लिए भी ऐसा कर सकता है। नहीं वैक्यूम क्लीनर से और वो देख के कोई और मुझे तो डर कर लगता दिया, है कोई तो यार वैक्यूम क्लीनर से तो क्या होगा थोड़ा कहाँ पड़ेगा असल में मतलब मैंने देखी नहीं मगर उस सीन को स्पेसिफिकली ये जो वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन है कुछ जो सेंसिटिव लोग उन्होंने अपोज करना चाह रही करना चाहिए है। था, सेंसर के लोग थे उन्होंने I was expecting a much better comedy from Raju उसको Hirani. इतना ग्रेड Very कर रहा frankly. है तो Especially on the two इतना great two हाई पॉइंट मध्ये दिले तसं ते वॅक्यूम नहीं, क्लीनर नहीं, सो that's the thing ना की when you are नाही, एक सांगू का सर हां. 5.1चा कंटेंट खूप ह्याच्यापेक्षा सुपीरियर इन अ वे इट्स नॉट अ फिल्मिंग मटेरियल क्योंकि 5.1 वो जो नॉवेल था मेरे पास 6-7 साल से पढ़ी थी। क्योंकि मेरा बड़ा भाई डॉक्टर है तो कोई मेडिकल कंपनी ने उसे गिफ्ट दी थी उनका पीछे नाम सो एक कोई मेडिकल कंपनी उसे अगर गिफ्ट देती है डॉक्टर्स को इसका मतलब उसमें कुछ तो स्ट्रॉन्ग कंटेंट होगा। Sir, that book was meant for that college. वो व्हाटएवर आई डोंट अभी तो मैंने पढ़ी नहीं meant for even. नहीं ये एमआर लोग तो कुछ भी Cinematic- कहते हैं सर अच्छा, कैसेट पर देख रहा था साथ के ऑडियो कैसेट कहीं पर No. देखते के विचार करूं मैं Sir, she has raised, initially she brought one specific valid point. Why we are getting into violence and things like that. You know, today's, she started yes with yes 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 Now, this is what it actually. Now, in this is where a director has to redefine how they should carry the things. So they have to relook into the things. That is, if you call a cinematic liberty to carry the mass and walk through this delicate pattern, which is unimaginative, but still they're carrying the masses with this thing. But it's totally unreal. They are not getting connected to the realities. They are getting connected to their aspirations, which doesn't have any base. So this takes them to make the mass walk through some area where they are just bursting, and when they confront reality, they are nowhere. This split, and a good cinematographer should reduce this gap and bring substantial this thing to make the people realize and carry them to closer to realities and make them enjoy. We need an ISI mark for filmmaking. ISI mark होना चाहिए. So censor is there, no? Censor is not really working as an ISI mark. एक्चुअली क्या है ना देखो सर क्या है ये होगा मतलब काफी विजनरी लेकिन पीरियड से तो मुझे उनका कोई अच्छा नहीं वो तो मैं कह रहा हूं आई वाज एक्सपेक्टिंग द बेटर कॉमेडी फ्रॉम क्योंकि और 50 साल बाद अगर ये होगा तो हम पहले आपको याद करेंगे क्योंकि अभी 50 साल भी नहीं हुए हैं इसको ये सारे जो सिस्टम डेवलपमेंट को ना और ये जो हमारे सेंसर के जो रूल है वो ब्रिटिशर्स लोगों ने उस वक्त जो बनाए थे जस्ट कि कई बार भी वो जो रिवोल्यूशनरी थॉट है वो बाहर ना आए दैट बाकी उनको उस वक्त आप फिल्में देखेंगे सेक्स वल्गैरिटी वो से उनको कोई लेना देना नहीं था सिर्फ उनके रूल्स ये थे कि कहीं पर भी वो रिवोल्यूशनरी थॉट रिबेल नहीं होना चाहिए बाकी अभी जो है वो सिर्फ वो अलग सब्जेक्ट है उसके लिए विल नॉट वेस्ट आवर टाइम तो असल में ये जो इंटरनेशनल फेस्टिवल्स होते हैं या एकेडमीज होते हैं एकेडमी अवार्ड्स या कांस फेस्टिवल तो इस सॉर्ट ऑफ आईएसआई मार्क ना आगे जाके और असल में क्या होता है ना कि आगे जाके there will be some sort of institutions where the committees will have a representation from various parts of the society which is an important thing कि क्या होता है ना कि not necessary कि फिल्म मेकर will have a apart from technical knowledge लाइफ का एक्सपीरियंस होगा इंटेलेक्चुअल बेस होगा या not necessary सिर्फ टेक्निकल चीज पता होने से doesn't make a difference ना तो असल में एक चीज को हम कब जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो उसमें मल्टी डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन हो ना जैसे इसमें पहले होता था वो पद्म भूषण पद्म विभूषण
नाउ यू कैन सी कि वो सैफ अली खान को भी मिलता है, वो विके पाटिल को भी मिलता है, तो देन व्हाट हैपेंस कि सारी चीजें बायस्ड हो जाती हैं ना। वो स्लम डॉग को ऑस्कर मिलने के बाद स्लम डॉग दैट ऑस्कर आल्सो बिकेम अ कंट्रोवर्शियल नो, सो वो होगा। नाउ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो वो जो बात थी ना वेडनेसडे और ऐसी काफी सारी फिल्में हैं। Sir, he did not comment on Wednesday. I will say because हमको आगे जाना है, तो मैं जरूर बेसिक बात प्रिंसिपल करूंगा। बताएं क्या होता है ना कि ऐसे काफी सारी फिल्में हैं सर कि जो पॉपुलर होती है बट कंटेंट उसका प्रॉब्लमेटिक होता है। एक ही बात है, वहाँ पे एक पैरामीटर आएगा ना सर, ऑलवेज इन इंडियन मूवी और एनी मूवी देयर आर फिल्म्स मेड फॉर क्लासेस एंड मासेस। नहीं, इफ यू आर चूजिंग यू कैन अंडरस्टैंड दिस। मदर इंडिया वाज अ फिल्म जस्ट एंटरटेनमेंट है, ठीक है, मदर इंडिया वाज अ क्लासिक और मास। मदर इंडिया जो फिल्म थी क्लास के लिए थी या मास के लिए थी? But it was a classic film. मुगले आजम थी, वो क्लास के लिए थी या मास के Those लिए were the थी? people who did it with a passion, not Yes. looking at the box office. उन लोग का एक अलग ही ये नजरिया था। एक 2 मिनट कुछ बात करना है, सॉरी। फिल्म एक मास मीडियम है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, पॉपुलर हो, ये हम भी चाहते हैं। मतलब जब हम कहते हैं कि हमें सेंसिबल सिनेमा बनाना है, सेंसिबल मतलब रोना धोना सिर्फ सीरियस नहीं, लेकिन जब आपको फिल्म बनानी है तो ये जो ट्रेंड बना है ना कि अपना दिमाग निकाल के रखो और फिल्म देखो, दिस इज वेरी रॉन्ग, एक्चुअली इट इज टेकिंग अस नोवेयर। तो ये हम चाहते हैं कि कई सारी फिल्मों में लोगों को काफ़ी पसंद आ जाती है, लेकिन क्या जरूरी है कि फिल्म एंजॉय करने के लिए दिमाग का बंद होना जरूरी। सो दैट्स व्हाट द मेन पॉइंट इज। काफ़ी सारी फिल्में जैसे अभी सर कह रहे थे, हमें हर साल 3-4 तो फिल्में ऐसी मिलती है जो काफ़ी पॉपुलर रही, लेकिन हमें उसमें खामियां दिखाई देती, ये बहुत अच्छी हो सकती थी और भी, एंड वी नीड टू टेक a few steps forward now as So what he's saying is true in his own way. What I would say is that when we talk of masses, we are not talking of the normal mass. हम लोग वो रिक्शा ड्राइवर और वो हाथ गाड़ी वाला, उन लोग जिस तरह से काम करते हैं, इस माहौल में रहते हैं, तो they have a certain inbuilt frustration. They have certain dreams and all those things. वो कभी उधर जाके देख नहीं सकते. So we are making them for them to feel that एक 100 रुपए में वो एक स्वर्गीय अनुभव लेके बाहर आता है, he feels दिन भर का थकान दूर हो जाता है, एंड ही फील्स उसमें अच्छी लड़कियों को देखा है, प्रॉब्लम वो हीरो की जगह खुद को रख के, मतलब जैसे कतरीना के साथ खुद को रख के ही माइट गेट सम सैटिस्फैक्शन। Probably that is when we say masses, we are talking of business is a different way. But ये जो लोग हैं, उनको उस तरह की फिल्में they are not going to be entertained. And I would say by entertaining them, we are actually doing a social service to them, because they don't have an outlet for themselves. Therefore, only sheer entertainment they are coming. So in that aspect, In that aspect, okay, I have something because Manmohan Desai, if you consider Manmohan Desai, all movies are like that. सिंपल है, मैं एक बोलता Manmohan हूँ। Desai, all Desai for some. कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर में वायरस कब आता है? आप जब एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चीजें देखते हो, कुछ ऐसे साइट्स ओपन करते हो कि वहाँ पे उसके एंटरटेनमेंट में होती है, बस साइमल्टेनियसली कुछ वायरस चला जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो ऑल दिस फिल्म्स वैसा सर देखा जाएगा ना, मनमोहन देसाई ने तो सब सीरीज देखो सर, दिमाग घर पे रख के आओ, लेकिन हमें सर ने जो बोला कि इट वुड हैव बीन बेटर, सोने पे सुहागा, अगर हीरानी जैसा आदमी ये अगर डिलीट करता था ये सब नॉनसेंस बीच में जो किया है, तो वुड हैव बेटर फीलिंग ह्यूमन। Absolutely. So that was your Successful filmmakers. Sir, in that case that is possible, some big people do mistakes. अगर नया वो बना हो ये सकता करता है, है, उसको समझा नहीं होगा, जैसा न्यूटन ने अपना घर का 4 बिल्ली को बाहर निकालने के लिए रात भर के 4 उसके लिए दीवार में, उसको ये समझाने कि बड़ा बिल्ली के पीछे 3 छोटा जा सकता है। So that mistake was made by scientists. So Irani is not suitable option for that. So he must be lacking in perfectionism. He is not perfectionist that way. He is not 100% perfectionist. everybody knows, but they know what He might have missed that, I can say. कमर्शियल वैल्यू Because sir ने जो बोला, वो जानबूझ के करते हैं ना वो। उनको पता होता है। सर YouTube बता देते तो it would have been just a documentary जैसा। इसके लिए उसको थोड़ा एक्साइट करके वीडियो बनाया हो। करीना को पैसा दिया और फिर काम नहीं कर रहा हूँ, करीना सीन के बाद ताली भी बजा एक्चुअली had nothing to do with the movie, तो कहीं ना कहीं उसको यूज तो करना ही she got best actress award also for this नहीं तो ऐसा पर्पस भी रखा हुआ है।
sunscreen. और क्या बोलेंगे? Yes, But then And वो you better say writer all है। that success goes to Problem you solver. start taking things for granted. That is That second, was third, perhaps third, the- you know. So certain things I start believing that okay, I'm God. जो भी है, look at सुभाष भाई, hit के बाद कैसे Down God. हर एक का जो आपको एक peak period आता है, by that time he starts thinking that what he does is just finally the ultimate. He is God. और when he feels cut out शुरू होता है, he drifts away from the masses. जो आप बोल रहे that is also true. But again वो masses वाला concept जो मैंने बोला, what we are talking of those. वो कैसा बात नहीं है तो विनर डे के बारे में भी बोलो। has some क्योंकि ना जो एंटरटेनमेंट में जो हमेशा इतना याद रखें कि नॉट नेसेसरी कि जो सोसाइटी में पॉपुलर चीजें होती है वो अच्छी होती है ऐसे क्योंकि उसका हमेशा उसके दो तो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिवली whether it's a good film or a bad film we have to understand कि why it is a good or why it is a bad or why it is being criticized ना क्योंकि उसमें से हमें सीखना है which is the biography that inspired you to make a film like that इसका चरित्र है हाँ Dada Saheb Phalke, after going through that, I thought कि I should seriously attend your few lectures. thanks to Dada Saheb Phalke you attended this course अच्छा apart from him I sir read about Charlie Chaplin. Charlie Chaplin well Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan Sir, I have not read the biography of the related to film, Okay. but some great writers and about Amrita Pritam and G.A. Kulkarni. So they have written so many means they can take they are larger than life. So if we can make films on their for Amrita Pritam, I think some 7-8 films are made on her writings, but she has written so much things. So that inspired me. It brought. start thinking of G.A. Kulkarni I have read more things about G.A. Kulkarni, but it is very difficult, sir, to make some cinematography from there. so that's a challenge Yeah. J. Kulkarni is most tough to understand. Yeah. Not only understand to make a film, means Only- even to only convert more it into classes. screenplay is also very difficult. J. Kulkarni is only classes. Sir, Swami yeah sir, here your question doesn't say कि which biography you are going to But make if into a guide film. path है, Which तो film, already- biography has inspired you yes to become not a necessarily filmmaker? film yes she has to She's क्या है mixing कि two things. my question is which biography Whose life has inspired you to Become a filmmaker. become a filmmaker? Not if I saw a play by Anupam Kher, वो सब कुछ हो कुछ भी हो सकता है. in NCPI होता है. So where he mentioned one incident about Amitabh Bachchan. He says कि जब वो शुरू में स्ट्रगल किया उसने और बाद में when he became successful तो बोलता है सक्सेस उसके हेड पे चली गई. That Anupam Kher is accepting. He says कि मैं बिल्कुल ऐसा रैश हो गया था. I never used to treat director producers को ऐसे समझता था. So बोलता है एक दिन मैं सेट पे गया. So वहाँ पे AC was faulty. So he says कि मैं आखिरी रास्ता पिक्चर का था शूटिंग एंड चेन्नई में था समथिंग. तो बोलता है कि मैं वहाँ पे गया स्टूडियो में जहाँ पे मेकअप तो बोलता है एसी बहुत फॉल्टी और काम नहीं कर रहा था. तो मैंने बोलता है पूरा सेट को सिर पे एक तो मैं 9 बजे का शिफ्ट 9 बजे पहुँचना था. आई रीच 11 o'clock एंड वहाँ पे जाके मैंने सिर पे उठा लिया सबको. वो बोलता है सब दौड़ भाग रहे हैं. सॉरी सर गलती है मतलब ये है प्रॉब्लम. बोलता है जब ये ठीक नहीं हो सकता तो पिक्चर क्या ठीक हो गया समथिंग लाइक दैट. दैट इज व्हाट ही सेज कि आई डिड एज अ ह्यूमन बीइंग. ही सेज बोलता है कि इतने में आई केम टू समबडी टोल्ड मी कि सर बोलते कॉर्नर पे कंबल डाल के वन चेयर सिटिंग एंड ही इज अमिताभ बच्चन विद बियर्ड ऑन. 9 o'clock he reported अपना मेकअप करके कंबल में उसका वो सीन होता है वो कंबल पहन के चश्मा लगा के बियर्ड वगैरह करके बोलता है ही इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर फॉर लास्ट 2 hours वेटिंग फॉर अनुपम खेर बिकॉज़ इसके साथ सीन था वो. एंड अनुपम आगे बोलता है उसको अमिताभ बच्चन को कि अनुपम सेट की मैंने उससे पूछा अमित सर ये वो करके उनके सामने थोड़ा सा मैं ठंडा हुआ एंड बोला सर क्या एसी वैसी इनका बड़ा खराब स्टैंडर्ड है एसी खराब हो गया. इसी यार अनुपम अब बोलता है आपको गर्मी नहीं लग रही. अमिताभ बच्चन बोलता है कि इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड. बोलता है अगर मैं सोचूंगा कि मुझे गर्मी लग रही है तो मुझे लग रही होती है. अगर मैं बैठता हूँ और कंबल भी पहना हुआ उसमें एंड ही सेज कि मेरे को लग रहा है अगर गर्मी नहीं है. बोलता है आई नो देयर प्रॉब्लम्स. तो अगर सो दैट इज व्हाट द कैरेक्टर ऑफ दैट इंडिविजुअल अमिताभ बच्चन. दैट इज व्हाट ही आल्सो एप्रिशिएटेड एंड एवरीबॉडी क्लैप्ड सो वेल. इतना ज्यादा उन्होंने क्लैप किया उसके लिए. सो दैट इज हाउ दैट काइंड ऑफ पीपल इंस्पायर यू टू do film. Sir, what inspired me is not it is exactly somebody's life. It is that means it was my passion to write stories. But afterward, I think your expression, if you want it to go for mass people, then film media is the best medium. So when after shifting to Bombay, I came to know that it is
means general people like us or common people like us can reach up to that. तो हमारे गांव में तो हमको लगता था ये तो अपना इसके बारे में सोचना ही नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है. I'm a total default kid. By default, I'm into this. I mean, I'm नहीं मगर way out of default order. होने के बाद भी तो बाद में पता चलता Now है making way. now अभी अपना रास्ता बना रहा हूँ. But I was in the teaching profession, and due to some destiny problems and all those things, उधर से हटके when I was in the teaching profession, I used to criticize films कि ये सब नहीं देखो. मतलब as a teacher, it's your duty. वहाँ से पढ़ाई करो एंड पिक्चर में मन मत ध्यान तो उसके बाद मैं राइटर बनने इंडस्ट्री में आया. राइटर तो नहीं बन सका, 4 फिल्में लिखी बट कुछ हुआ नहीं उसका. उसमें से एक्टिंग में और अभी पता नहीं. आई मीन इट्स ऑल डेस्टिनी हाउ थिंग्स आर टेकिंग अप. इट्स ऑल डेस्टिनी. इफ यू बिलीव उनका बायोग्राफी जो ऊपर वाले का तो वो तो नोबडी कैन. No, why we have raised these questions? अगर आप का कोई इंस्पिरेशन नहीं है, तो try to find out your inspiration. आपको उनका लाइफ कॉपी नहीं करना है, but you have to learn some lessons that how they have gone through the process. क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि इसमें हमें रास्ता तो हमें खोजना होता है, बट ऐसे इसमें बाकी लोगों ने कैसे प्रॉब्लम्स हैंडल किए हैं और किस हालत में उन्होंने अपना सक्सेस अचीव किया है. सो क्या होता है ना कि हमेशा मैं जब बताता हूँ कि जब हम एज अ फिल्म मेकर सोचते हैं तो हमेशा ऐसा लगता है कि यार मैं सोच रहा हूँ whether it's a right or wrong or what problems are there or how to justify these problems or thinking. अगर अब ये जो फिल्म मेकर्स की या जो राइटर्स है या जो क्रिएटिव लोग हैं इनकी बायोग्राफीज पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा they have faced the same problem. क्योंकि इसमें आपको कोई गुरु नहीं होता है कि ये सही है या हाँ तो हमें समय सिखाता है. मुझे प्रेमचंद की एक कविता है, पूर्वजन्म के बटोई बाट की पहचान कर ले. पुस्तकों में है लिखी गई नहीं उसकी कहानी, हाल उसका ज्ञातों का है पैरों की निशानी. वो निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है. हाल इसका जान ले कर ले पंथ की पहचान कर ले. वो जो बाट है उसका कोई लिखा हुआ नहीं है. Like of course we can discuss and talk, but when you make a film, कुछ लोग आगे चल गए वहाँ से, उनकी निशानी है. क्या होता है ना कि why filmmaking is different from or the profession of a director is different rather than any other arts. क्योंकि वहाँ पर एक आप पर्टिकुलर एक सेक्शन में होते हो, पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म के साथ होते हो. यहाँ पर आपको सारे प्रोसेस में से गुजरना होता है ना. तो अगर आप अपने आप को ऐसे रिस्ट्रिक्टेड कर लेते हैं एक पर्टिकुलर इसमें तो यू कैन नॉट क्रिएटिवली क्रिएट और फोर्स के साथ यू कैन नॉट क्रिएट थिंग. अगर आपने अपने आप को ये जस्टिफाई यू नो आई एम अ कमर्शियल आर्टिस्ट और आई एम जस्ट एनिमेटर और आई एम जस्ट अ राइटर और आई एम अ साइंटिस्ट और आई एम अ बिजनेसमैन, दिस इज नॉट माय दिस इज जस्ट फॉर हॉबी और जस्ट फॉर पैशन आई एम डूइंग दिस थिंग्स. तो शायद आप कुछ कर भी लेंगे मगर उसमें आप कितना उसे न्याय देंगे उसकी कोई शाश्वती नहीं होगी. तो क्या होता है ना कि आप एक आर्ट में कुछ कीजिए, दूसरे में कीजिए, तीसरे में कीजिए, जो भी कीजिए, बट इट शुड हैव सम fruits. I would recommend you to study biography of Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci किस चीज के लिए फेमस है? हर चीज. मोनालिसा. हाँ? पेंटिंग, ना तो असल में very few paintings he has done in his life. He was an architect and He was number one in everything. And even he was in medical में उसकी हिस्ट्री है ना, क्योंकि वो लोगों के सामने नहीं आया है. तो what I can say कि he was a thinking director. तो मैंने उन्हीं का देखा था लियोनार्डो दा विंची, लेकिन मैं सब फिल्म
सो दैट्स द थिंग ना, देखो आप ऐसा रिस्ट्रिक्ट मत हो जाइए कि बायोग्राफी मतलब वो फिल्म से रिलेटेड होना है या फिल्म अच्छी लगी। हाँ मेरा वो जो कहते ना, वो आपका वो प्रोजेक्ट, हाँ नहीं कोई भी प्रोजेक्ट हो, मुझे कहते ना लियोनार्डो दा विंची ये लग रहा है कि वो एक सर्टेन थिंग में कहते ना बट नहीं गए थे, ही वाज इनटू एवरीथिंग। सो उनकी क्वालिटी हाँ क्या होता है कि लाइफ में जो भी आर्ट आती है, जो भी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होता है, हर एक चीज का उन्होंने एक्सपीरियंस लिया एंड नॉट जस्ट टू एक्सपीरियंस बट ही एनालाइज द थिंग्स। एक्सपीरियंस तो दुनिया लेती है, अगर एनालाइज कम लोग होते हैं कि जो एनालिसिस करते हैं। और उनकी एक why I'm telling you because personally I was very much impressed by the biography of लियोनार्डो दा विंची। मैं भी पेंटिंग तो कुछ करता नहीं हूँ, जब आर्ट स्कूल में भी था तो लाइब्रेरी में जाके सिर्फ लियोनार्डो दा विंची का किताब लेके मैं बैठा। नो नथिंग, वो पता था वो सब देखते थे, बट आगे नहीं पागल एक सर्टन लेवल तक आप पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर एक्टिविटी कैन एंजॉय, बट लियोनार्डो की जो बायोग्राफी you cannot stop at particular moment. You are enjoying music, you are enjoying literature, you are enjoying astronomy. तो हर चीज उनके इसमें से रिफ्लेक्ट होती थी एंड नॉट अ बायोग्राफी बट उनका जो एनालिटिकल राइटिंग था, ये डिजाइन गिवन है हेलीकॉप्टर। यस दैट टाइम यस। तो क्या होता है ना कि व्हाई वी गेट एक्साइटमेंट, क्योंकि हम कहीं ना कहीं पर उस चीज के बारे में सोचते हैं और हमें जब वो मिलता है, जब वी अचीव दैट थिंग, वहाँ पर डेफिनेटली हमें एक्साइटमेंट होता है। जो चीज़ हमें नहीं चाहिए होती है, जिसकी हमें इच्छा नहीं होती है, वो मिलने पर ना हमें सुख दुख होता है ना खुशी होती है। जैसे हम अगर कोई हम रास्ते से जा रहे हैं और किसी ने कोई मेडिकल मैगजीन हमारे हाथ में थमा दी, आप क्या खुश होगे? देख के रख देंगे। या जो पैम्पलेट बांटते हैं ना कि नहीं वो दवाखाना होता है, वो चीज उसके बारे में तो उससे ना हमें हम तो एक तो लेके फेंक देते हैं, या मगर जाते जाते कुछ ऐसे किताब हमें दिखाई दी कि जिसके हम सोच में हैं या किसके सर्च में हैं, तो वी विल गेट एक्साइटमेंट जो हमें वो मिलती है। So why we have asked this question that which is a biography? Biography not necessarily should come from the film background. It can be anything. वो कोई सेंट हो सकता है, कोई राइटर हो सकता है, कोई एक डे टू डे लाइफ का आदमी हो सकता है, या ऐसे कोई व्यक्ति हो सकता है कि जिसकी कोई बायोग्राफी नहीं है मगर वो व्यक्ति है, जैसे इन्होंने कहा अमिताभ बच्चन, तो उनके लाइफ का वो इंसिडेंट है, that incident inspires him to get involved into this film. Means yes, one of them. चार्ली चैपलिन का जो मैंने बोला, हाँ, इसमें एक उसका ऐसा आता है लाइफ में, हाँ, कि उसके पिताजी के साथ वो शिप में उसके माँ को लेने के लिए गया, 9-10 साल का, जब वो उसकी माँ ने उसको आते थे इंट्रोड्यूस किया तो उसने किया मेरी इज जीसस क्राइस्ट, पिताजी हुए नहीं, शी वाज स्किज़ोफ्रेनिक। चार्ली का इट्स बिगेस्ट सटायर, जिसकी माँ ही पागल थी और उसने दुनिया को पागल होने इन 20th century. There is a side of life. She was 100% schizophrenic. Charlie's mother. Yes. So देखिए ना कि That is satire. What is it? ये सब क्यों हम कहते हैं कि जब अलग अलग फिल्म मेकर्स के या अलग अलग क्रिएटिव लोग हैं जो कुछ नया जिन्होंने कुछ किया है, ये जो भी 5-6 हज़ार साल की जो हमारी संस्कृति है ह्यूमन बीइंग की डेवलप इसकी, तो उसमें जिन्होंने कुछ अपना कुछ पोजीशन क्रिएट किया है, अपना फेस दिखाया है, ऐसे लोगों की जब हम बायोग्राफी पढ़ेंगे या कुछ उनका जीवन क्रम देखेंगे तो उसमें हमें एक शार्पली हमें एक आप वी विल नोटिस कि काफ़ी सारे हर्डल्स थे उनकी लाइफ में. पीपल नेवर एक्सेप्टेड इजीली दिस पीपल. मगर एक समय ऐसे होता है कि कुछ सालों बाद, कुछ सेंचुरीज के बाद जब लोगों को रियलाइज होती है दैट्स अ फैक्ट. सो वी आर नॉट
saying you कि हमें कुछ भी करना है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा या पूरी दुनिया उसकी दखल लेगी या नॉट नेसेसरी. हमें लोकली काम करना है बट इट शुड हैव अ यूनिवर्सल. ऐसे यूनिवर्सल नाम की कोई बड़ी चीज. हाँ, Should try to add values. yes, It's a basic. it's basic stuff. ग्रेजुअली हम आगे आगे जा रहे हैं क्योंकि आफ्टरनून में हमें प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करना है, उससे रिलेटेड ही सारे सवाल हैं. अभी ये सारी अभी तक की जो बातें थी क्वेश्चन नंबर 8 तक की जो सोचने वाली बात थी कि हमें ये अच्छा नहीं लगा, वो अच्छा लगा, हमने वो पढ़ा है. अभी बात आती है असल प्रैक्टिकली. That is the question number 9. What are the reasons those keeps you away from writing, or those motivations that keeps you in process of a writing? Laziness, mental conflict, Mostly the time constraint. external Actually, factors. she has a valid reason. So what I feel, basically nowadays it is a financial crisis. Financial crisis. Financial Okay. crisis because Okay. the person has to get involved in that creativity. He should be free from any encumbrances, any tension उसके सर पे नहीं चाहिए. एक जमाने में राजा महाराजा कलाकार लोग को अपने दरबार में रखते थे, उनका पूरा राजाश्रय वो देते थे, उनका फैमिली का वो पालन करते थे. Then he could have shown the creativity because his mind is free. यहाँ पे ये बिल भरना है, ये हफ्ते वाला है, पैसा वसूल करने को इसको करना है, संभालने का कहाँ क्रिएटिविटी होगा? सिर्फ मैंने वो सोचना पड़ता है, कहाँ उसके बाद टाइम क्रिएटिविटी करोगे? Your mind should be Yes, free no, from see. any this encumbrances. What we have to do is we have to find out the problems and then again we have to find out the solutions for these things. Okay, apart from this, I would like to talk on the second part. second. What are the reasons those keep you away from writing, okay. or those What is the motivation motivation? that keeps you in process of writing, because I am in process of writing. So one is social injustice that makes you write something. Yes. Expressing your emotions. Then government's wrong policies in different walks of life, that makes me write. Then certain customs and traditions which are age old and still people follow it, though they are wrong, bad, although that keeps me in writing. And corruption. These are the various subjects which makes me write. Apart from him, These are the subjects, but what is the basic instinct behind your Expressing yourself, emotions. Expressing myself by way of writing. You can't suppress this frustration. And the It's same not thing has something brought me over here. Now the Yes, yes. major media is film. My letter Ours may are not film. be read by many people, but film can be seen by me. okay, Is apart that from right? this thing, कि जो top, हाँ, yes. Should I mean, I would say so differently. Yes, हाँ. In the sense, I came into this field as a writer. Most of us would be probably contributing to that. But as a writer, one has got you cannot express yourself. You can't be creative. Why? Because जो director होता है, उसी की कहानी होती है, and you are actually at his mercy, at his disposal. You are only a stenographer for him. You can't be creative. Your own idea. Till you establish yourself as an identity, your stories don't hold. Okay, it's the director who comes with a vision and he wants it that way. तो अगर वो बोले कि नहीं ये हम लोग की गाड़ी यहाँ से गोवा जानी है, आप बोले सर औरंगाबाद क्यों नहीं, वो गोवा तो गोवा ही है, because मेरे को गोवा चाहिए. In the sense कि a writer on his own, unless he establishes his identity, has got no value. It is the director who holds the reins in his hands. As a writer, I mean, I came as a writer and I'm no longer a writer because of the same reason. But now there is But I now think it appears that you have discouraged. No, it never happened. It did not matter. Give me financial benefits. आप फिर बनेगी तब देखा जाएगा धीरे धीरे पैसे देंगे every signing amount ये करते करते 2 साल देखिए again, we are not yet come to the final factor. कि जो आप लिख रहे हैं तो जैसे ये लिखते हैं, it doesn't bother कि मुझसे क्या पैसा मिलने वाला है या क्या. नहीं, if you're talking of it as a profession, bread butter honey. No, वो कल जाएंगे उसका खाने. This is a new one. So yes, my motivation I find that कि whenever I feel like to express, I don't get anybody for sharing at that moment. And because I don't have at present at our place means 10 years back when I was at 100, we were having a very good group.
Means we used to अच्छा, discuss. share I was- this. Nobody, you know, there is nobody to appreciate what you have Because written. means here when Yes. I want to tell something or whatever is coming in mind, then I have to write only. Then only I will yes, I मैं have बोलते to- जंगल में मोर नाचा किसने देखा? You keep on singing, दुखी हो तो गा रहे हो, लेकिन कौन सुन रहा है? मतलब वो भी बात है ना. You need. And when you listen to Himesh Reshammiya, then you feel कि अच्छा ये भी गा रहा है. We know at least one singer who sings for himself. We know at least one singer who sings for himself. अब इस 2 दिन में हम आपको एक तो गाना हमें सुना Now, इसमें क्वेश्चन आता है एटलीस्ट एट टाइम कि हाउ फार इट इज कॉमन दैट डायरेक्टर ऑलवेज इंटरफेस इन द स्टोरी लाइन और स्क्रीन प्ले नाउ व्हाट इज you are the best just to tell us what is actually happening in the film industry. No, basically क्योंकि what I feel at the era of Salim Javed, director used to receive from him क्या करना है. डायरेक्टर ने उसको बता दे रहा. सलीम जावेद बोलता था ऐसा चाहिए मेरे को, ये ऐसा स्क्रीन प्ले चाहिए, तू शूटिंग कर, ये डायरेक्ट ऐसा कर. What is as per my knowledge. Salim Javed won't allow anybody to change a single word. This is my information. नहीं, क्या है ना, देखो असल में इट्स अ डायरेक्टर्स मीडिया. अभी जो आमिर खान का रिश्ता झगड़ा चल रहा है. हाँ, वो आमिर खान जो वो एक नौकरी में हवा घुसी है, वो जो है ना, वो असल में पागल हो गया है ना. आमिर खान ना वो वोल्टेज बढ़ गया है उसका, क्योंकि इतना मतलब Success. बालिश. हाँ, Success वो स्टार ही होता है जिसकी वजह से गाना पॉपुलर होता है. वो सब नॉनसेंस चीज है उसमें. तो क्या है ना, So my question is how Yes, often it is happening? Yes, no, so the thing is, What is it very basically, it's a director's media. Okay, even though if you are hiring a script writer, director अपना एक visualization होता है, अपना एक वो edited version देखता है. तो उसमें director will say कि वो कहाँ पर dialogue कितना लंबा होगा, या कहाँ पर वो एक word कहेगा, या इतने लंबे dialogue की जरूरत नहीं है. तो वो director देखता है. तो accordingly डायरेक्टर विल टेल टू द स्क्रिप्ट राइटर कि वो क्या चेंजेस चाहिए. ये कब होगा, जब डायरेक्टर खुद उतना मैच्योर्ड है, उसका की लेवल है. अभी क्या है ना कि कुछ चीजों में ऐसे होता है ना कि या तो स्टार की वजह से फिल्म होती है, या फिर सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर की वजह से होती है. जैसे ए.आर. रहमान का म्यूजिक है तो बस सेल हो गया फिल्म. तो ऐसे हालत में तो सलीम जावेद वो जंजीर के बाद वो स्टार बन गए ना. तो उनकी सेलिंग मिली थी कि अभी जावेद अख्तर, गुलजार एक गाना लिखने के लिए 20-30 लाख लेते हैं, असल में वो खुद लिखते नहीं, सिर्फ उनके सिग्नेचर वैल्यू आ गई है. सो कोई अच्छा डायरेक्टर हो तो वो किसी जैसे मणिरत्नम एक नॉर्मल जो एक शॉप ओनर है जो पंची बेचता है, उसने गाना लिखवा के लिया है उसने बॉम्बे का. वो क्या अपना ये बैनर वाला. हाँ. सो क्या है ना कि डायरेक्टर का टैलेंट हमेशा इम्पोर्टेंट होता है rather than वो किसका नाम ले रहा है ना. जैसे वो फिल्म कौन बोल रहा है कि अमिताभ की फिल्म जुम बराबर आप बोल रहे हैं, वो क्यों फ्लॉप हो गई? क्योंकि सिर्फ 10 अच्छे लोग इकट्ठा आने से फिल्म नहीं बनती है. जब तक डायरेक्टर की कोई सोच नहीं होगी, जब तक कोई उसका पर्पस नहीं होगा, तब तक कोई उसका प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं निकलेगा. तो हमेशा कीप इन माइंड दैट स्क्रिप्ट इज अ पार्ट ऑफ अ डायरेक्शन. जैसे जैसे सेक्शंस बन गए कि कैमरामैन अलग हो गया और डायरेक्टर अलग हो गया, आर्ट डायरेक्टर अलग हो गया, वैसे बाद में स्क्रिप्ट राइटर अलग हो गया. इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टर को स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं आती है. उसे तो सबसे पहला आना जरूरी है, स्क्रिप्ट राइटिंग और एक्टिंग. दिस इज द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. ठीक, नाउ 10th क्वेश्चन थोड़ा ह्यूमरस है या सटायर है. आंसर भी बड़े ह्यूमरस है. अच्छा, इसके तो सभी आंसर हमें सुनने हैं. How society is going to suffer if you don't make a film? अच्छा, if you agree. If you हाँ. So you is missing. हाँ, अच्छा. That's why. दिवाकर, आपने लिखा है क्या? पेपर नहीं लिखा. नहीं. अच्छा, वो आप लेट आया.
आंसर किया है क्वेश्चन? नहीं किया है। हाँ? हाँ, तो मैंने लिखा है कि द सोसाइटी विल यू नो इफ आई डोंट मेक फिल्म सोसाइटी विल मिस आउट ऑन सम फाइन एंड जेन्युइन वर्क एज आई फील दैट फिल्म मेकिंग इज इन माई ब्लड दो आई एम in a peculiar career but which by the way has given me a lot of life experience which I can use it. That's a courage. क्योंकि हरिश्चंद्र की फैक्ट्री में ना एक अच्छा उन्होंने ये किया है कि उनकी आंखें चली जाती है, मतलब दृष्टिहीन हो जाता है। वो कहते हैं कि मतलब मैं कुछ नहीं करता हूँ तो ये इंडिया पूरे ये इंडस्ट्री को सफ़र हो जाएगा। तो दैट टाइम ऑल पीपल वे आर फीलिंग क्या बात कर रहा है, मगर वो आज उन्हीं के वजह से आप हम सारे लोग यहाँ पर देख रहे हैं। सही है ना? सो दैट्स व्हाई आई एम इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीबॉडी आंसर। सर आपने आंसर नहीं किया। हाँ मैडम। Because there is a dictatorship in that film industry. Means they are showing whatever they want to show. And when there is no choice, you have to see and you have to select means between them. It is good, it is that. So we should start showing means whether it is a flop film or whatever. But you should show what is the what should be a good film. Whether it will collect money or not, that is a different thing. And after making so lot of things, when there is a good choice from the good films, then only the people they will have the habit to see or they will develop the taste to see the good things. No, how your experience will count to the industry or to the society? At present, as a filmmaker, I can say. No, but what I am saying, what we observe, your medical profession, your practice, आपकी क्वालिटी मतलब जो आपकी है जो क्वालिटी है कि जो शायद अभी तक आप देखेंगे कि there is no a lady, a filmmaker who has a medical background. There are n numbers of doctors, Dr. Sardar Patel, Dr. Shridhar Lago. So there is one major also a director. Mohan Aragashi is a practicing psychiatrist. Practicing. So you have to identify how your professional doctor. Yeah, Yeah, it's fantastic. Psychiatrist. ठीक है। हाँ जुनैद। Sir, I feel that, I mean, if I say like if I'm a filmmaker, or if I talk of anybody as a general audience, कि I feel अगर आप फिल्म बनाना बंद करते हो, तो I feel society will suffer in a way because हमारी फिल्मों के ज़रिए हमारी yeah, I mean I'm talking on behalf of both. Okay. I mean our films contain a lot of social messages, a lot of moral values. जैसे हम हमेशा दिखाते हैं कि politicians हमेशा corruption रहते हैं, police officers are always corrupt हैं, they are like useless. But after 26/11, now I see any police officer I respect, no matter how corrupt he may be, कितना बड़ा alcoholic हो, but I have the respect for that man, that way. और कोई भी फिल्म मेकर चाहे मैं हूँ या यहाँ पे होंगे या बना रहे होंगे, कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर देंगे। जैसे देशद्रोही में कमाल खान ने वो डायलॉग लिखा था, पहले बोलेंगे आप महाराष्ट्र से निकलो, फिर बोलेंगे आप हिंदुस्तान से निकल जाओ। You know what I'm saying? Yes. So it contains, the audience, the masses gets educated, that way. So I feel filmmaking is very important. That's my point of view. और जो कोई भी filmmaker होगा, that way. Yeah. हाँ। I don't believe anything will go wrong if I don't make the film. But on the contrary, there are some problems existing. I have some solutions for it rather. That is, on a minuscule level, if you analyze socio-economic situations, I observed there are certain areas which is silly, small, simple, but we live those situations. Everybody go through the same situation, which I have taken some other time and explained some samples of it. So these small things create
the social fabric, it ripples us in the social fabric. There's so many of the problems are the outcome of not being treated at these levels. So making an awareness and reflecting the whole situation to the masses that these are existing and it's just small simple things which you can change and the socio-economic fabric can change. This is, this concept through various areas which I feel that it is important or what I can contribute. These things I would like to encapsulate in the audio visuals and leave it to the society by which it takes its own course of growing and they can improve to that extent. This is all my contribution I would like to look into. Sir, I feel nobody is going to suffer, but if I make films, my viewers are going to get benefited economically and intellectually. अब टैक्स फ्री मूवी निकालने वाले हो क्या? टैक्स फ्री मूवी निकालने वाले नहीं निकालने वाले, गवर्नमेंट टैक्स फ्री कर देगी। अरे वही सब्जेक्ट होगा कि टैक्स फ्री हो जाएगा और इकोनॉमी का पीपल विल बी बेनिफिटेड। यस व्यूअर्स। रुद्रा। Even I don't think the society is going to suffer if I don't make films, because today's society is means mentally and emotionally very strong. So means how much also means influential film you make, it doesn't matter to them. They are indifferent to their films, and this is my thought. Do you have any example कि एक पर्टिकुलर फिल्म से सोसाइटी स्पॉइल हो गई है या एक पर्टिकुलर फिल्म की वजह से सोसाइटी में एक जीने की तमन्ना आ गई है या कुछ फोर्स आया है? हाँ। मुन्ना भाई वाला पिक्चर है जिसमें गांधी का है, गांधी रीइन्वेंटिंग द गांधीज्म, यू नो, जाके बहुत लोगों ने पढ़ा हाँ, गांधी की क्या, और वो यंग जनरेशन यू नो हाँ। एकदम उनको फिर से एकदम रिवाइवल हुआ है उनका ना, कि दैट चाहे उसको कंट्री का लव बोलो या उनके इंडियननेस बोलो या गांधी की जो वैल्यूज हैं उसको फॉलो करने के लिए. सो दैट इज अ वेरी गुड मूवी व्हिच हैज यू नो एटलीस्ट ब्रॉट आउट यू नो गांधीज्म. सो दैट इज सिर्फ टाइमिंग के लिए था इसमें. But it certainly creates awareness in society. कैसे होता है ना कि उस वक्त कुछ हुआ, उसके बाद इनडायरेक्टली रिजल्ट कुछ ना कुछ जरूर रिपल इफेक्ट इज ऑलवेज देयर ना, कि तो उसका आप अगर उसे एनालाइज करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो डेफिनेटली विल सी द रिजल्ट्स. हाँ, आपने बोला ना टाइम भी हुआ. एक्चुअली लेट मी नाउ कम आउट ऑफ द क्लोजेट. द आइडिया वाज दिस. मैं बहुत लोगों को एसएमएस करते गए रात को कि see this film, see this film, see this film. So one of my friend also called me. Then I spoke to my friends in the newspaper. Sir, we are telling people आप 10 लोगों को कॉल करो, वो 10 लोगों को, ऐसे नेटवर्किंग हुआ. Finally somebody from Times called me up. मुझे and मेरे friends को, they have featured us in the paper saying that कि ये लोग गांधीगिरी प्रमोट कर रहे हैं. मुझे गांधीगिरी क्लब का प्रेसिडेंट बनाया गया एंड मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे 15 लोगों को हमको साथ में लेके हमको पेपर में ये किया. एंड देन आज भी मुझे उसके बाद मुझे 4 लोगों ने फीचर किया. मिड डे वालों ने किया, गुजराती मिड डे, गुजराती अभियान, टाइम्स ऑफ इंडिया से भारती दुबे ने, सबने संडे के दिन आर्टिकल सब थे उसमें. मैंने 2-3 जगह पे मेरा फोटो भी लिया. एंड देन अभी वो टाइम भी उस दौरान तो फिल्म के साथ साथ मेरा भी बहुत पब्लिसिटी हुआ. एंड देन उसके बाद भी आज जब 2 अक्टूबर होता है ना, तो कहीं कुछ रिबन कटिंग के लिए बुलाते हैं. तो आज भी बुलाते हैं आफ्टर 2006 के बाद. तो आपने वो फोटो लगा के वो सुबह करते हैं गांधी जी का? नहीं, गांधी जी देखिए, फिर मैंने एट द सेम टाइम लोगों को ये भी कहा कि गांधी जी ने कुछ नया नहीं किया. What he said was there in Bhagavad Gita and this. आज भी मैं आप लोगों को गांधी जी का कुछ नहीं सिखा रहा हूँ. I am going to tell you about Bhagavad Gita now. So आज भी 3 साल के बाद भी उसका थोड़ा असर है. रिलेटिव्ह आहे की काही वर्षांनी तुम्हाला त्याचे रिझल्ट दिसायला लागतील किंवा Ramayana and Mahabharata written by Vyas and Valmiki 5000 years maybe back. But this Bihar Chopra and Ramanand Sagar
brought this back to our this new generation who are allergic to reading actually books. Yes, yes. रामायण And great work done. और एक बात है कि ये जो अजंता एलोरा या बड़े बड़े साउथ के टेम्पल अगर वो नहीं बनते तो क्या होगा? Missed out on that part. ऐसी कितनी सारी चीजें हमने मिस की है। अगर वो सही डॉक्यूमेंटेड होती, वो सुना है वो जब नालंदा जब विद्यापीठ जल रहा था करीबन 3 महीने तक जल रहा था, नियर 9 लाख वो जो बुक्स थे वो सब वहाँ पर थे। तो इतना सारा ट्रेजर था वो हमारा जल गया। तो जो भी आज बचा है वो किसका नतीजा है कि किसी ने किसी से कभी ना कभी कुछ इफर्ट किया है ना। तो नॉट नेसेसरी आपको अभी फील होगा कि क्योंकि इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं होते हैं, कोई भी आर्ट जो होता है वो समय से काफी आगे होता है ना। तो नॉट नेसेसरी कि आप जो वो कहते हैं कि आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा सोसाइटी में, कहीं ना कहीं पर सोसाइटी सफर होगी, क्योंकि जैसे पॉलिटिक्स में अच्छे लोग नहीं होते हैं या फिर बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, इवन नाउअडेज इन द मीडिया दिस माफियाज आर देयर, तो उसका रिजल्ट होता है। चेंजेस का मतलब ये नहीं कि काफी बड़ा रिवॉल्यूशन हो गया और सारी चीजें चेंज हो गई। एक छोटा दिया जलने से भी उसमें जो रिजल्ट होगा दैट इज आल्सो रिजल्ट। हाँ, जैसे ये यहाँ कहते हैं जेल में डोंट किल द क्रिमिनल, किल द क्राइम, मतलब इसके अंदर के जो विचार सो एक्चुअली इन सोसाइटी हम लोग में जो डिफरेंट शेड्स जो दिए हुए हैं, डार्क शेड, ग्रे शेड, ये so we all see the shade but we don't see the reason behind it. I mean, I would be in the process if I had like the chance to show that if this person is grey or if you're saying that he is grey, why? What are the circumstances which have led to? Nobody wants to be grey in life, nobody wants to be dark in life, but it is the circumstances. Yes. We don't visualize the circumstances, we make the person as the villain. I would like to show the people that this person is not the villain, it is the circumstances which are, of course it's shown in a lot of films, but those are shown on a very criminal level. But एक छोटा सा एक आम आदमी जो जैसे आपने दीवार में देखा हो तो आदमी ने जो पाँव चुराया वो लड़के ने, और इट वाज वेरी टचिंग सीन कि उसको हमने चोर लेबल कर दिया, बट व्हाट वाज द सर्कमस्टेंसेस व्हिच लेड टू इट। तो आपकी हर एक बिहेवियर, मेरी हर एक बिहेवियर तेरा सर्कमस्टेंसेस व्हिच आर लीडिंग टू इट। सो आई थिंक इन द मीडिया कैन बी यूज्ड टू हाईलाइट दैट कि a person is not bad. So your emphasis is will be to enlighten people about that, so that it will reduce the negativity in society कि okay ये आदमी बुरा नहीं है, circumstances, और कहीं ना कहीं invariably without us knowing we are responsible for the circumstances. So that is it could be an eye opener. I could be making lots of films, no doubt, but I don't think I'm such a big person that it will make any difference to society's development, because society has its own core problems and creative media is just a reflection of what society is throwing on you. So it's just something which will come and go. See, yeah, we respect your opinion, but आपको ऐसे लगता है वो मतलब you are not a big person or you are not, but society will later on decide. That is for the society. So, and even we are not saying you are a big person. So how, what are your qualities? इसका सवाल का जो कंटेंट है कि आपकी क्या क्वालिटी है कि जिसको सोसाइटी मिस करेगी ना, तो दैट्स द थिंग, वो हमें जस्टिफाई करना है। और now a lot of films have been made on all elements like different pie and all. Even Anand was attempt done on cancer and all. So it's a very good message they have given. They made people aware of the elements. These are very new elements. People, so they are educated with the help of these movies. That is an advantage. It's a very strong message. Your view towards Even Anand में राजेश खन्ना का जो रोल था, ये the payoff line ये था कि छोटा जिंदगी रहेगा चलेगा, उसको मजे करो। Yes. कितनी लंबी है उसको कोई वैल्यू नहीं है। तो जो कैंसर पेशेंट है, it was blessing for them कि forget you are suffering from this incurable disease, but you are going to live a very good life, lavish life. तो इन शॉर्ट मैसेज था स्टोरी लाइन। वैसा हर एक जो एलिमेंट के ऊपर आ रहे हैं, अभी नए नए फिल्म बहुत आ गए, तो there's a strong message there giving what I feel. Besides sheer entertainment, they are giving something extra.
I haven't made any films as such. Not so many films. Not necessarily make, but you will make no someday. So I don't know what society is missing right now because I haven't contributed using films as a media. But the question I have for my own self is how does society benefit when I start making films? That is what I want to ask myself, which will come into play only after I execute my plans that I have in my head. So it's basically my point of view that the society is going to get to solve a few issues if they can with my point of view. That's Correct, Neeraj ma'am. हाँ और कोई है? हाँ सर मुझे लगता है जितने सारे लोग हैं अगर मैं फिल्म बनाऊँ नहीं बनाऊँ सर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा किसी को जब तक अच्छा कंटेंट नहीं है। देखो यही होता है कि जब तक कोई और करेगा तब क्रिटिसाइज करना। कैसे ना एक कविता थी Somebody, nobody. शंकराचार्य पिंडवत को दूधाला first they came for the Jews and nobody speak for them. After that they came for Gays. huh? Gays and homosexuals. Gays and I said काफी है and Jehovah's when they came for me there was nobody left to speak for me. मतलब दुनिया में अलग अलग लोगों के ऊपर अत्याचार होते हैं ना तो दुनिया बात करती है। अब जब डायरेक्ट अपने ऊपर जब कोई आता है तो हमारे बारे में बात करने के लिए कोई बचता नहीं है। तो जब तक हम किसी के बारे में आवाज नहीं करेंगे तब तक अपने बारे में कोई आवाज नहीं करेगा। So it's that kind of a thinking कि sort of a selfish thinking कि मेरा कुछ नहीं फर्क मतलब I don't have to contribute anything for the society because society doesn't make any difference if I do or do nothing for anything. तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं पर जब अपनी पर्सनालिटी होती है वो सोसाइटी की देन होती है तो कहीं ना कहीं से हमें उसका जो ऋण है उसका जो ग्रेटिट्यूड है वो आपको शेयर करना है। Not necessarily you will make a big full-length feature film or films or you make a 3-minute short film which will have some content. आपका काम हो सकता है क्योंकि आपके अंदर का जो टैलेंट है या आपके अंदर का जो ग्रेटिट्यूड है वो कहीं ना कहीं से सोसाइटी के सामने आना जरूरी है। And why we are here कि वो क्या करना है वो हम आपको नहीं बताएंगे कि आपको क्या सोच ये करनी है। We will tell you जो आपका सोच है उसे प्रैक्टिकली कैसे डिलीवर करना है। Not deliver like vacuum cleaner से। वो जब नेचुरल होता है जो भी कोई अगर कोई एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट होती है she will not recommend a seizure if I'm not wrong क्योंकि जब नेचुरल बर्थ होता है तो there are lot of science, there are lot of isms, there is a lot of theory कि उसका importance क्या है। तो हम आने वाले कुछ दिनों में हम आपको वो जो प्रोडक्ट होगा वो नेचुरल कैसे बाहर आएगा उसमें उसके सारे जो गुण हैं वो तो आपके होंगे आपका इंप्रेशन होगा। अब ये जो सारे सवाल हमने इस पर डिस्कस किए हैं you can rethink about these questions। हमें पता है कि हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे हैं मगर हमें कॉन्फिडेंस था कि आप हमारे लोग हैं आपके लोग हैं इस वजह से अदरवाइज इट्स अ वेरी these are the very personal questions बट हमें कहीं ना कहीं से हम आपसे कुछ अपेक्षा रखते हैं। हमें सिर्फ आपके 2500 में इंटरेस्ट नहीं है वो तो सिर्फ वो सिस्टम चलाने के लिए बट व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू इज कि जो आने वाला जो 3-4 साल होंगे जो आने वाला जो समय होगा उसमें से जो रिजल्ट हम देखेंगे उसमें हमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। एंड व्हाई वी हैव इनिशियली ये सब क्वेश्चन ये किया क्योंकि आपको पता है कि आप कहाँ पर हैं। अलग अलग सवाल हमने पढ़े हैं अलग अलग उसके आंसर्स देखे हैं अलग अलग ओपिनियंस देखे तो
आने वाले 1.5 दिन में हम ये देखेंगे कि आपको सब्जेक्ट के ऊपर कैसे सोचना है। आफ्टरनून में फिर से हमें प्रैक्टिकल करनी है, हमें 3 ग्रुप में डिवाइड होना है और प्रैक्टिकली हमें सब्जेक्ट के बारे में सोचना है। अब कल उसमें से जो भी असाइनमेंट बताया जाएगा उसमें से हमें कल पूरा दिन 3 एक्सरसाइज करने हैं एंड नॉट लाइक अ प्रीवियस एक्सरसाइज की जो हमने कंटिन्यूटी फिल्म शूट किया है। इसमें काफ़ी सारी डेप्थ होगी, उसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमें समझ में आएगा और इसमें से जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं कि कहाँ पर आपके पोटेंशियल्स हैं, कहाँ पर आपका लैकिंग है, या वो सारे इसमें से हमें आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। क्योंकि देखो फाइनेंस इज ऑलवेज प्रॉब्लम, वो अनिल अंबानी को भी फाइनेंस का प्रॉब्लम होता है ना, मगर आपको जो कुछ क्रिएट करना है उसके लिए आपको समय तो निकालना है एंड देयर इज नो एक्सक्यूज। तो वो देखेंगे अभी, वी हैव अ लंच ब्रेक। Sir, will we be doing a short vision Yes. storyboarding across? Yes. Student boards. Is that okay? Today's morning session काफी सारी चीजें क्लियर हो गई या